Hi friends, welcome back to the class of thermodynamics. In thermodynamics, in the previous session, we have seen what is thermodynamic equilibrium, what is thermal equilibrium. Okay, now in today's session, we will talk about reversible process and irreversible process. Okay, now we will see what is reversible process and what is irreversible process. Before starting that, we will see about quasi-static process. Quasi-static process. Now, what is this quasi-static process? You can say, sir, in one of the session you have told about isobaric process, isochoric process, isothermal process, adiabatic process. Now, what is this reversible process? And what is this irreversible process? And then what is quasi-static process? So these are also type of process. What are the things I will tell you later on. Now, this is about quasi-static process. See here, there is a piston cylinder arrangement. This arrangement you can see in engines. The engine works like this piston and cylinder arrangement. Inside cylinder, the fuel is there and there is piston which move to and fro motion. Okay. Now, I will tell you what is quasi-static process. Okay. So you can see here the definition is process proceeds in such a manner that system remains infinitesimally close to equilibrium condition at all the times. Now, what do you mean by all these things? I have used many technical words. आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल दिया है ना? ये डेफिनेशन है ठीक है, पर ये है क्या चीज? ये टेक्निकल वर्ड्स हैं कुछ जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि इन्फानेटेसिमली क्लोज मतलब इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट ना हो, ठीक, डेफिनिट ना हो, ठीक, वो होता है इनफाइनाइट। अब यहाँ जो हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं बहुत ही छोटा, जब हम बहुत ही छोटी चीज की बात करें, छोटे समय की, छोटे डिस्टेंस की, किसी भी चीज की, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं इन्फानेटेसिमली। ओके, तो ये एक सिस्टम है जो एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें वो कैसा हो रहा है, इन इस तरीके से हो रहा है कि द सिस्टम रिमेन्स इन्फाइनेटेसिमली क्लोज टू इक्विलिब्रियम। मतलब इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है कि वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर रहा है। ऑलवेज द सिस्टम इज अचीविंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, मीन्स जैसे आप ये दो फिगर देख रहे हैं, क्वासी स्टैटिक का और एक नॉन क्वासी स्टैटिक का, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है? दोनों प्रोसेस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपना आंसर कि आपको दोनों फिगर से क्या डिफरेंस पता चल रहा है। सही कहा आप लोगों ने कि जब पहला केस है क्वासी स्टैटिक वाला, यहाँ ये जो मूव हुआ है इसी को हम डिस्प्लेस भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ इतना मूव हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो टाइम था वो t इक्वल टू 0 था। यहाँ टाइम एज्यूम किया हमने t इक्वल टू t1, जैसे हम फिजिक्स में एज्यूम करते हैं चीज़ों को, वैसे यहाँ हमने एज्यूम किया कि इनिशियल कंडीशन जब स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ टाइम 0 है, उसके बाद कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम कितना टाइम है, how much this time is we don't know, so we are assuming that this time is t1. Same thing we are assuming here also, but the difference is here this displacement, जो distance के displacement जो आप कहें ये इस केस नॉन क्वासिस्टेटिक में ज़्यादा है, ठीक, और क्वासिस्टेटिक में ये डिस्टेंस कम है। मतलब क्या हो रहा है, और यहाँ क्या होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये जो टाइम है ये क्या होगा, कम होगा, और या ज़्यादा होगा,
इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है और ये ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से इनफाइनिटेसिमली क्लोज। यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने की चांसेस ज़्यादा हैं। Here, in this case, the chances for achieving the equilibrium condition is more in comparison to the second case of non-Cauchy static. Okay. One another thing. Here it is said time t1 is greater than t2. Means time is more, but distance is less. Here distance is more, but time is. What about time? So this is nothing but when the system is taking much time and travels a small distance. Again, I am repeating, friends, if system is taking long time to travel a small distance, then the condition comes infinitesimally close to equilibrium. In first case, the thing is time is bigger, but distance traveled is very small. In second case, distance travel is more, but as well as time is also very much. So here chances of achieving equilibrium condition is less. So it is non-causastatic process. दोस्तों, अगर छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक, और दूसरा केस है कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो फर्स्ट केस जहाँ कम डिस्टेंस है पर टाइम ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम 3-4 घंटा ले लिया, पर आप सिर्फ 1 मीटर ही मूव कर पाए, तो वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस है, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहा गया। ठीक, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, it is also called as quasi-equilibrium process. As I told you, the chances of equilibrium condition is more. That's why this quasi-static process is also known as quasi-equilibrium process. Okay. Static means something is not moving, it is static. So chances of getting equilibrium is more. Quasi-static process को ही हम quasi-equilibrium process भी कहते हैं। क्यों? अब कोई चीज स्टैटिक है तो क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को भी क्वासी-इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, ये चीज़ पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी-इक्विलिब्रियम प्रोसेस किसी भी नाम से आ सकता है। कब ये कंडीशन अचीव कर पाएंगे आप? कब? जब ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं आप। ठीक, इसी को हम दूसरा भाषा में कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, इनफाइनिटेसिमली क्लोज टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुई होगी यहाँ कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है, नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है, व्हेन यू कैन अचीव द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, व्हेन इट इज नॉट कॉल्ड नॉन क्वासी-स्टैटिक। ओके, नेक्स्ट we will see the next topic, which is, okay, before going to next topic, that is reversible and irreversible process, let me explain you more about this, how you will represent in the graphical form, how you will represent quasi-static process in graphical form। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि हम ग्राफ में क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को कैसे दर्शाते हैं, हम कैसे बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस ग्राफिक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है ग्राफ के थ्रू।
ठीक, तो यहाँ आप देख रहे होंगे दो डायग्राम से, फर्स्ट फिगर इज दिस वन, सेकेंड फिगर इज दिस वन. Now what is the difference you can see here? Here this point and this point means state 1 and state 2. They are connected to a solid line. But in the second case, it is connected through dashed line. This line is not continuous. It is breaking. Okay. So the first case where there is a solid curve or solid line is nothing but quasi-static process path. While in the second case, where there is discontinuous line or dashed line, this is nothing but non-quasi-static process path. Friends, ये चीज भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि भाई quasi-static process को आप कैसे दिखाते हैं या ग्राफ में कैसे शो करते हैं या नॉन quasi-static पाथ को कैसे शो करते हैं ग्राफ में. तो आप बता सकते हैं ये quasi-static प्रोसेस है तो वो एक कंटिन्यूस सॉलिड लाइन से आप दर्शाएंगे, जबकि जो नॉन quasi-static प्रोसेस है उसको हम डैश डैश लाइन से मीन्स डिसकंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया. डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे. ठीक, अब आती है बात रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस. इन योर डेली लाइफ you can see these things. Suppose you take a toothpaste. From the tube, you can take out the toothpaste, but reversible means reverse. Can you insert the toothpaste again in the tube? डेली लाइफ में अगर आप देख रहे हैं, एक आपने टूथपेस्ट की ट्यूब लिया, ट्यूब में से आपने टूथपेस्ट निकाला. ठीक, क्या आप वापस उस टूथपेस्ट को उस ट्यूब में डाल सकते हैं क्या? अगर डाल सकते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर नहीं डाल सकते तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस. ऐसे ही एक आपने गर्म चाय ली, आपने उसको एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में रख दिया, तो क्या होगा? आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो गर्म चाय ठंडी हो जाएगी, उसने अपने हीट को लूज कर दिया. अब क्या पड़े पड़े वो चाय वापस गर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. तो वो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक, तो जब भी आप वापस से इनिशियल स्टेट को अगर नहीं पा सकते तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और अगर आप वापस पा सकते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. एग्जाम्पल यहाँ आप देख लीजिए. गैस सिलेंडर, ओके, दिस इज सिलेंडर, दिस इज योर stove or what you say cooking gas. Okay, now what you will do, how you can burn this stove? Tell. There will be knob, you will turn on the switch on the knob, the gas will start from the gas cylinder and through this tube it will come to this gas stove. Okay, but reversible process, it is reversible path is possible. अगर आप ये एग्जांपल ले रहे हैं इसमें आपने गैस का सिलेंडर रखा है और यहाँ एक स्टोव रखा हुआ है. ठीक, अब यहाँ आपने स्टोव का यहाँ एक नॉब रहता है, स्विच रहता है, जिसको आपने ऑन किया तो क्या होता है, यहाँ से गैस आती है पाइप के थ्रू, इसके अंदर चले जाती है. ठीक, अब अगर आप उस नॉब को बंद करेंगे जो कि यहाँ पे है, नॉब को अगर आप बंद करेंगे तो क्या गैस वापस रिवर्स होकर वापस सिलेंडर में आ जाएगी कि अपने आप? नहीं आएगी, अपने आप नहीं आएगी. ठीक, तो वो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ गए होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है. अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं, यहाँ सब चीजों को आपने सॉलिड लाइन से ज्वाइन किए. पॉइंट ए है जो इनिशियल स्टेट है, पॉइंट बी जो फाइनल स्टेट है. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आने के लिए आप अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, इधर से, यहाँ से, यहाँ से.
पाथ कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देख रहे हैं हम यहाँ सॉलिड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस दर्शा रहा है। इसी को कॉसिस्टेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। यस, सही सही पहचाना आप लोगों ने। इसी को कॉसिस्टेटिक प्रोसेस भी कह रहे हैं और इसी को रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, तो दोनों एक ही चीज है। कॉसिस्टेटिक प्रोसेस ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। एंड if it is discontinuous or dashed line, it is non-causative process or irreversible process. Note down this point, very important point. If it is quasi-static process, then it is also known as reversible process. And if it is non-quasi-static process, then it is also known as irreversible process. How to represent it? If you join with continuous line, then it is reversible or quasi-static process. When you join by discontinuous line or dash line, then it is non-causative process or irreversible process. Right. Now I will tell you some example. See here, this pendulum. You give a push or pull it and leave it. What will happen? What will happen? It will again come here, go this side, again come here, again go this side. Like this, it will happen till it will again reach the initial state at the center point. Okay? Am I right? If you initially it is vertically like this, straight. Now you pull it and leave it. What will happen? It will come here, again go this side, then come at the center, again go on the right side. Like this it will happen, and after some time what we will observe, it will again come to the initial point at the center. समझ रहे हैं आप? अगर आप ये पेंडुलम लिया आपने, अब पेंडुलम नहीं है तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। एक रस्सी से आपने कुछ चीज को बांध दिया, उसको आपने लटका दिया। अब उसको आप किसी भी एक तरफ खींचिए, या तो लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, और वो छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। कुछ समय बाद अपने आप वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, मीन्स अपने इनिशियल पोजिशन पे आ जाएगा जो कि सेंटर पे। ठीक, तो वो एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड विदाउट लिविंग any trace on the surrounding, that is reversible process. Now what do you mean by this? Don't leave any trace on the surrounding means both system and surrounding are returned to their initial state at the end of the process. Means system and surrounding जो है दोनों अपने initial state पे, initial condition पे आ गए। ठीक, ये कब पॉसिबल है? When it is possible, when the net heat and net work exchange between system and surrounding is 0. ये तभी पॉसिबल है जब नेट हीट और नेट वर्क ट्रांसफर किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नेट हीट ट्रांसफर, नेट वर्क ट्रांसफर 0 होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव करना पॉसिबल। पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि रियल लाइफ में ये चीज इम्पॉसिबल है। उसके बहुत सारे कारण हों, वो हम आगे बताएंगे आपको आने वाली क्लास में। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट उल्टा ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपने एक कप लिया, हॉट कप कॉफी का, आपने उसको रख दिया, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ठंडा होगा और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक, बट क्या वो रिवर्स पॉसिबल है कि अपने आप वो वापस गर्म हो जाए? नहीं। ओके, आई टोल्ड यू दिस एग्जांपल ऑलरेडी। यू टेक अ कप ऑफ हॉट कप ऑफ कॉफी, leave it at surrounding. So what will happen? The hot cup of tea will try to cool down. It will lose the heat. But is it possible that automatically by itself it will again get hot, keeping in the surrounding automatically by itself? It is not possible. So this is example of irreversible process.
Okay. Now, why reversible process? Someone can say, if sir, reversible process is not possible, then why we are fighting? Why we are talking for the reversible process? तो सब पूछ सकते हैं कि सर जब रिवर्सल प्रोसेस एक्चुअल रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है उसके कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, easy to analyze as system passes through series of equilibrium position. एनालाइज करना आसान है. इट एक्ट्स एज अ आइडल मॉडल. हम कहते हैं ना रोल मॉडल क्या है आपका, आइडल मॉडल क्या है. इट्स एक्ट्स एज अ आइडल मॉडल. बेस्ड ऑन दिस the actual process can be compared. Okay, this can act as a idle model and we can compare all the actual process with this. It acts as a limit, theoretical limit for anything. It sets a limit, means any process can maximum go up to which limit? Up to reversible process limit. Any process in actual life can achieve maximum which point? This reversible process point. It cannot cross the reversible process point. लाइफ में या ओरिजिनल या एक्चुअल में जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी कुछ लिमिट होगी. वो लिमिट क्या है? उस लिमिट को कोई प्रोसेस क्रॉस नहीं कर पाएगा. मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक कोई भी चीज़ जा सकती है वो क्या है? थ्योरेटिकली वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही वो लिमिट है. मतलब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस से ज़्यादा को क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक. In real life, any actual process cannot cross the reversible process limit. Okay. थैंक यू दोस्तों. आज के लिए इतना ही काफ़ी. अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा. ठीक. कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ठीक है. थैंक यू.